Dear students, now in today's class we will come to know about some more important aspects of this story that will help you to understand the main theme in a much better way. For today's, I have decided these three topics: Matilda's refusal to join the ball party on ground of not having costume. The next is Mr. Loisel's readiness for getting buy a dress for Matilda, and the last topic is the evaluation of Mr. Loisel's character as a husband. Okay? You already know that Matilda come to know about the holding of a ball party at the residence of Mr. Minister, but after reading the invitation letter, she just threw the invitation card like a waste paper on the table and straightly tell Mr. Loisel, this invitation letter is of no importance for her. अब यह सुनकर मिस्टर लोइजल बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा था कि इन्विटेशन लेटर पाकर मैटिल्डा का इस तरह से रिएक्शन आएगा। वह कभी भी मैटिल्डा को बाहर नहीं ले जाते थे, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उन्होंने यह समझा यह इन्विटेशन को पाकर मैटिल्डा काफी खुश होगी, क्योंकि पहली बार उसको ऐसा मौका मिलेगा कि वह किसी बड़े पार्टी फंक्शन का हिस्सा बन सकेगी और ऐसे लोगों से मिल सकेगी जिनसे मिलने के लिए वह बचपन से ही चाह रखती थी। But here the reaction of Matilda was quite contrary to what was Mr. Loisel thinking. He straightly reacted and told Matilda he had brought this invitation letter to her because he thought that it will please her. She hardly goes out and he hardly had time to take Matilda out, particularly where something is happening which Matilda liked very much. And he tried to bring Matilda at the term of joining the party, especially telling that, Matilda, this is not an ordinary party, it is a big party, it is a big occasion. If you go there, you will be able to meet persons of affluence and influence. One of the desires which you have been longing for right from your father's house. So why do you refuse to go there? Now come to Matilda's reaction. See, for few minutes, she didn't tell any words to Mr. Loisel. But as Mr. Loisel told her it was a big party, she threw a look of anger, irritation and hatred at Mr. Loisel and immediately said, yes, it is a big party, but not for me. It is a big party for you or for some of your colleagues who are as rich as to join the party with their wives, with all the required things one must have to be the part of the occasion. What do you think? Why should I go there? इसी ड्रेस में जाएंगे क्या?
और जो ड्रेस पहने हुई थी उसकी तरफ वो इशारा करती है। What do you suppose I should wear too such things? ऐसे कपड़े पहनकर मैं पार्टी में जाऊंगी? मैटिल्डा का यह जवाब सुनकर मिस्टर लोइजल हतप्रभ रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैटिल्डा की जो थिंकिंग है वह इतने दूर तक जा सकती है। He had never thought to the extent of managing a suitable dress for Matilda to join the party. लेकिन हम आपको पहले दिन से ही कह रहे हैं कहानी पढ़ाने के दौर में कि वह मैटिल्डा को दुखी नहीं रखना चाहते थे। मैटिल्डा का यह रिएक्शन सुनकर वह एकदम बेचैन हो गए और वह सीधे कहने लगे कि मैटिल्डा, तुम्हारे पास तो एक ड्रेस है, यू हैव ऑलरेडी गॉट ए ड्रेस, और वह ड्रेस पहनकर तुम थिएटर देखने जाया करती हो। यू हैव गॉट ए ड्रेस, you wear to you go to the theater, and I like that dress very much, and that dress suits you pretty. तुम वही ड्रेस पहन लेना। इतना यह कहना था कि तुम वही ड्रेस पहन लेना, और ऐसा कहने के बाद वह मैटिल्डा का जब चेहरा गौर से देखने लगे तो मैटिल्डा के आंख से आंसू बह रहा था। अब तो वो बेचारा और घबरा गया। उसको वह रोते नहीं देख सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। तब वह कहता है कि अच्छा तुम घबराओ नहीं, तुम जरा कैलकुलेट करके बताओ कि पार्टी में जाने योग्य जो तुमको एक कस्ट्यूम चाहिए वह कस्ट्यूम कितना में आ रहा है। इतना तो बोलना था कि मैटिल्डा के चेहरे पर एक तरह का लाइट आया, ठीक है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसका हस्बैंड एक क्लर्क है, वह ज़्यादा पैसा इसके पास नहीं हो। इसीलिए शी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग मेंटली एज टू हाउ मच शी शुड डिमांड। ऐसा तो नहीं कि वह इतना पैसा डिमांड कर ले कि इसका किरानी पति उसको दे ही नहीं पाए, है ना। इसको ध्यान में रख के वह मेंटली कैलकुलेट करती है और कहती है कि देखो लोइजल, 400 फ्रैंक में मेरे को एक अच्छा सा ड्रेस हो जाएगा। फ्रैंक फ्रांस के रुपया का नाम। 400 फ्रैंक में मेरे को यह अच्छा ड्रेस हो जाएगा। अब 400 फ्रैंक जैसे ही वह बोली कि मिस्टर लोइजल का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। उनके पास वास्तव में 400 फ्रैंक था। उन्होंने एक एक फ्रैंक करके 400 फ्रैंक जमा कर रखे, लेकिन वह जो पैसे उन्होंने जमा किए थे उस पैसे का यूज करके उन्हें एक गन खरीदना है ना, चिड़िया मारने वाला गन खरीदना। क्योंकि हर आदमी का अपना एक शौक होता है। उनके जो कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है, वह हंटिंग के लिए जाने वाले थे अगले समर में। इस साल तो वह नहीं जा सके, अगले समर में हंटिंग के लिए जाने वाले थे और उन्होंने सोच रखा था कि वह भी जाएंगे अपने फ्रेंड के साथ हंटिंग करने के लिए और 400 रुपये में एक गन आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने 400 रुपये बचा कर रखे थे। लेकिन वो क्या करते, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है मैटिल्डा, तुम मत भागो, अभी लोइजल है, ठीक है, तो मैं तुमको 400 फ्रैंक दूंगा, ठीक है। लेकिन देखो 400 फ्रैंक में तुम एक ऐसा ड्रेस खरीदना, देखो एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति का स्टेटमेंट। 400 रुपये में तुम ऐसा ड्रेस खरीदना कि उस ड्रेस को पहनकर तुम इस पार्टी में तो जा ही सको, और भी ऐसे कोई भड़कीले अगर आयोजन हो, है ना, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयोजन हो तो उसमें भी तुम उस ड्रेस को पहन कर जा सको, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए बार बार उस तरह का इतना महंगा ड्रेस खरीद कर देना मेरे लिए संभव नहीं होगा। इतना जैसे ही वो मिस्टर लोइजल कहते हैं कि मैटिल्डा काफ़ी खुश हो जाती है। बच्चों आज यहीं तक। अब हमें 2 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। अब आप नोटबुक निकालिए, 2 सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उन सवालों का आंसर आप लिखें। For what purpose Mr. Loisel had saved 400 francs? क्वेश्चन आगे बढ़ाइए। Why did he decide to give the amount
to his wife. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Why was Mrs. Loisel not ready to join the ball party? Was she right? Was she right? If not, why? And if yes, why? This much for today. Thank you.